रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था। 27 फरवरी 2026 को आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश और विदेश से कई विशेषज्ञ जुड़े। उन्होंने अपने व्याख्यान दिए। आपको बता दें कि विशेष रूप से श्रीलंका और नेपाल से आए विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। इसके साथ ही अमेरिका, रोमानिया और विदेशों से भी विशेषज्ञ इसमें ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने अपने वक्तव्य दिए और इस मौके पर वो यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं, फैकल्टी मेंबर और सभी ने एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान की बातों को साझा किया, अपने शोध को साझा किया। निश्चित रूप से यह कॉन्फ्रेंस अपने उद्देश्य में सफल रही। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर A.K. वाजपेयी ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का लाभ विश्वविद्यालय को मिलेगा और निश्चित रूप से इस तरीके की कॉन्फ्रेंस से हम सभी को काफ़ी फ़ायदा होता है। डॉक्टर S.S. संधू का कहना था कि यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी और बहुमूल्य ज्ञान को साझा करने वाली साबित होगी। This is Professor Chandrakanta Mahendranathan from Sri Lanka, Eastern University, Sri Lanka, which is situated in the eastern part. This is my son who joined with me for this wonderful place, Mr. Mahendranathan Jananan. So I'm so delighted, so happy, and I'm so honored to be here for this conference. Of course, I should say a big thank to Professor Sanghu, actually, the Dean of the Faculty, who invited me for this beautiful university and this prestigious university, and of course the beautiful city of Jabalpur. So it's giving me an immense pleasure to be an invitee at this wonderful conference, at this wonderful university. So I would say a big thank you for such a wonderful recognition for me. And I'm so proud, and I'm so thankful to say a big thank to every organizers and the funding agency for this wonderful opportunity. Of course, this kind of a collaborative conferences, particularly having some international guests and speakers, are really worthwhile for such a wonderful institution, prestigious institution, to develop their network further and further, and to move forward towards the collaborative research in terms of biotechnology and plant-related researches, and also human-related diseases. So it has been organized very wonderfully, and the hospitality was extremely excellent of these people. Actually, I should salute the people for their hospitality, particularly from the day they have invited us and up to we are here for this conference. So we are so excited of their hospitality, their kindness, of course, their helpfulness, everything. So it's a great, great pleasure for us to congratulate them and to thank them by using this opportunity. Thank you. Namaste. My name is Navin Narayan Munalkaru. I am from Nepal, and I belong as an adjunct professor at the Tribhuvan University, Bhaktapur Multiple Campus. And also currently I am president of Biotechnology Society of Nepal. And I am very much indebted towards the Rani Durgavati University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India, for inviting me. It's the auspicious events. And these events I found is very good, as this is the very interdisciplinary based conference, as this conference is not only organized by a particular science subject, it is an integration of physics, chemistry and biology. So by name and by its modality, it covers the wide range and works in the spirit of collaboration for further sustainable of this science and technology. And talking about my own field of research is especially on the medicinal plant, and the very focus is like the research not only limited for fundamental things, it should reflect at least some minimal things in terms of product-based recovery. So my very focus is like exploration of indigenous medicinal plant. That's in scientifically called as ethnomedicinal exploration. So where we can find how these plants are utilized by the indigenous people for their daily life, for their normal health, and even different kind of disease conditions, so that they can have these medicinal plants. And the next thing is like we will do the
bioactive characterization of that particular plant, so as to give some kind of scientific validation that those they are having during their ethnomedicinal practices. And then we transform that knowledge into some product-based things, thereby encouraging them for the commercial farming of the plants, generating the rural economy. So my focus of today's presentation especially belongs to that one. Very thank you. एक मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की तरफ से की जा रही है, जिसमें रसायन विभाग, गणित विभाग, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भौतिक विज्ञान के चारों डिपार्टमेंट मिल के इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें इंडिया से और अब्रॉड से भी कई सारे अच्छे लर्नेड स्पीकर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सस्टेनेबल फ्यूचर पे है, तो ये कॉमनली हर डिसिप्लिन के लिए एप्लीकेबल है और हर तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। बड़ी संख्या में मैंने जो देखा कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी हैं और जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो दोनों मोड में है, हाइब्रिड मोड में। जो लोग बाहर से बोल रहे हैं वो ऑनलाइन मोड में भी बोल रहे हैं, कुछ जैसे श्रीलंका से, कुछ और कंट्रीज से लोग, नेपाल से, इसी जगह से फिजिकल मोड में भी आए हुए हैं। मैंने भोपाल से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हूँ और मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में एक स्पीकर के तौर पे आया हूँ और मेरा इसी सेशन के बाद एक लेक्चर है। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं वो बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे कंटेंट्स लोगों ने, बहुत स्पीकर्स बुलाए हुए हैं और गैदरिंग को देख के लग रहा है कि जो यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत अच्छी बेनिफिशियरी होंगी इसके लिए। एंड मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स को इसके लिए धन्यवाद। सर, आपका जो टॉपिक है वो क्या है? मेरा टॉपिक है स्मार्ट सुप्रामोलिकुलर मेटेरियल्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, जिनका कि फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में और सेंसिंग में, ऑप्टिक्स में और बहुत सारी अलग अलग जगह में इनका यूज है। बहुत स्मार्ट मटेरियल्स के तौर से यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लेक्चर सुनेंगे और उनको काफी इससे फायदा होगा। Dhananjali Srivastava. I work in mathematics and this conference is multidisciplinary. Actually, biotechnology, physics, chemistry, math, the people are organizing. So every topic is taken into account. It is covered, and every subject experts they have come. They are coming from all over India, and they are coming from all out of India also, and they are taking a good care of the participants regarding fooding, lodging, stay there, and they are all very courteous, and they have taken care of the quality of the subject, so that the students which have come, the experts which have come, they can learn something from this conference, and this will help them in future. मुझे बहुत खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय ने ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की है और इसमें श्रीलंका से वैज्ञानिक आए हैं और इसमें नेपाल से आए हैं और यूएसए से, पेंसिल्वानिया से डॉक्टर हेमदत्त शुक्ला और बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हैं जो ऑनलाइन भी जुड़े आ रहे हैं। जैव तकनीकी का मैं देख रहा हूँ इसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, और बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लिए गए हैं। मैडम ने भी बहुत अच्छा, अभी जो श्रीलंका से आए बहुत अच्छा डेलिब्रेशन दिया। अभी नेपाल वाला चल रहा है, तो दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी फंडामेंटल थिंग। डॉक्टर हेमदत्त जो हेमदत्त शुक्ला जी हैं, जो यहीं के एलुमनाई हैं, बेल्टीमोर में, यूएसए में, उन्होंने कैंसर को निकालने के लिए जो मेडिसिन बनाया वो बहुत ही मिराकुलस चीज दिखाई है, जो हमारे बच्चों के लिए कोलैबोरेशन के लिए वेलकम किया है उन्होंने। सारी यूनिवर्सिटी जितने भी लोग आ रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए हमारे बच्चों को वेलकम कर रहे हैं। यही एक मेन मुद्दा है कि पीएम उषा को हम धन्यवाद देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे बच्चों का इंटरेक्शन बच्चों के लिए ही था और हमारे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन उससे होगा और हो सकता है इनमें से कोई बच्चा इन बड़ी बड़ी साइंटिस्ट की लैब्स में जाके कुछ दिन काम कर पाएगा, जैसे कि बचपन में हम लोगों ने सिलेक्ट होकर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ये सारी चीजें घूमी है। तो एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने बच्चों को पीएम उषा ने। धन्यवाद देता हूँ, अपने कुल गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ जो कि हमें इन्होंने इस काबिल समझा कि हम इसको ऑर्गेनाइज कराएं। बहुत शानदार वर्कशॉप चल रहा है, कॉन्फ्रेंस चल रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 4 विज्ञान विभाग, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विभाग सम्मिलित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसका यह
3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जो 26 तारीख से लेके 28 फरवरी तक हो रही है। यह दिन चुनने का जो ध्येय है वह ये है कि हम जानते हैं कि हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में यह तिथि निर्धारित की गई है कि 26 से 28 तक हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें। या कॉन्फ्रेंस जो है भारत शासन के और राज्य शासन के द्वारा पीएम उषा के अंतर्गत जो परियोजना है उसके अंतर्गत जो आवंटित राशि है उसके माध्यम से ये कराई जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में का जो मुख्य विषय है वह साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इनोवेशन एट द इंटरफेस ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च है। इसका ध्येय ये है कि हमारे यहाँ जो साइंस और के इनोवेशन और रिसर्च की दो धाराएं हैं, एक प्योर साइंस की तरफ है, एक अप्लाइड साइंस की तरफ है। तो हमारा इसका विषय चुनने का ध्येय यह था कि हम प्योर और अप्लाइड साइंसेस को सम्मिलित करते हुए उसको इंटीग्रेट करते हुए ऐसा इनोवेशन हो जो हमारी बेसिक साइंस के माध्यम से जो डिस्कवरी हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से अप्लाइड साइंस में टेक्नोलॉजी के लिए किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जिसका सीधा लाभ जो है हमारे सोसाइटी को मिले, समाज को मिले और देश हित के लिए मिले। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है 2 विदेशी वैज्ञानिक यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। एक श्रीलंका से मैडम चंद्रकांता हैं जो जीव विज्ञान विषय की विशेषज्ञ हैं। इसी प्रकार से नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से जो पधारे हैं वो जीव विज्ञान के भी विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका से मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हेमदत्त शुक्ला जी ने आज एक अच्छा व्याख्यान दिया जो कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से दिया, जो हमारे पैंक्रियाज में जो कैंसर रोग होता है उसके संबंध में जो उनका एक बड़ा अच्छा अनुसंधान हुआ है, उसमें उन्होंने उसके ड्रग के संबंध में, उसके कैंसर के रोग के उपचार के संबंध में जो अनुसंधान किए हैं उसके बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार से रोमानिया से हमारे उपरेकर जी रसायन शास्त्र के जुड़े हुए थे। कल के दिन हमारे यहाँ 2 वैज्ञानिक डीआरडीओ से पधारेंगे। जो डीआरडीओ की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी है उसके 2 वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ पर होंगे। जो भी अनुसंधान इस समय डीआरडीओ में चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय के सभी विज्ञान के विद्यार्थियों को, उनके शोधार्थियों को, उनकी फैकल्टी को समुचित लाभ मिल रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है और वो सीधे न केवल देश के विभिन्न संस्थाओं में जो अनुसंधान हो रहे हैं उनसे वे रूबरू हो रहे हैं, उसकी जानकारी मिल रही है, जिससे वे अपने अध्ययन और शोध को और परिष्कृत कर सकेंगे, जिसका लाभ उन्हें मिले। Fixed point theory. My lecture is delivered by fixed point theory. Fixed point theory is useful for research scholar and student and very good research scholars. And fixed point theory is always used in daily life. For example, AC, a room heater, and pendulum. They are main topic in daily life. इस कॉन्फ्रेंस में आने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है और सभी जितने भी मैथमेटिशियन या और सब्जेक्ट के प्रोफेसर आए हैं उनसे हम इंटरेक्शन हो रहा है और हमारे रिसर्च स्कॉलर या जो स्टूडेंट हैं उनको काफी लाभ होगा। First of all, thank you for this university for inviting my mother to this wonderful international conference. And as I already am about to talk that India is so much beautiful and this country is like a second mother to me because it's Sri Lanka and India. And I'm about to study mathematics for the engineering. And that's my goal to achieve. And this conference helps me to understand what other people are trying to tell throughout this conference. And it gives me idea of how the professors and the many important persons are acting around in this conference.